Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna, 8th canto, 6th chapter, 9th verse. Krishna is replying to the prayers. Brahma is praying to Lord Krishna after the Lord had appeared. Rupam tavaitad purushasha bhejam Shayo arti vivaidikatantrikena Yogena data sahana sriloka Pashyami emasmin uhavishya murtha. Oh, best of the person of Supreme Director, those who actually aspire for supreme good fortune, worship the form of your Lordship according to the Vedic Tantras. My Lord, we can see all the three words in you. So we can see all the three words. There is the famous shloka Prabhupada has quoted, Yasmin Vigyata Sarvam Eva Vigyatam Bhavati. Prabhupada used to quote many times that he had to talk to big philosophers. There is one book, Dialectic Spiritualism. When the book was released, it sent shockwaves in the West. Shockwaves. Because what they consider as their foundation and basis, Prabhupada just smashed it. They brought out all the people who can say there are cultural foundation, just like in India. Our foundation is Madhvacharya, Ramanujacharya, Shankaracharya, Veda Vyasa. This is the foundation of India's culture. No doubt, it is based on them only. Correct? Anybody has to take knowledge from them as per the Vedic knowledge is concerned. So whatever their culture they have, Western culture, they also have some great thinkers and philosophers. And Prabhupada smashed all of them. And how? Not the Prabhupada sitting and preparing for hours, nothing. Prabhupada used to go for morning walk every day because doctor told him that you should walk for some time every day because the bones become stiff otherwise sitting in a place. So Prabhupada used to go for walk and devotees used to prepare and bring one philosophy every day. Some of them were maybe knew some philosophies and they used to study and prepare. Prabhupada, Sigmund Freud said that. Prabhupada, Carl Jung says that. Prabhupada, this person says that. Prabhupada, that person says that. Prabhupada, that person says that. They were bringing one by one different philosophies to Prabhupada. And Prabhupada was very clearly just answering. Just, this is nice, this is nice, this is nice. Oh, what is all this? This is not correct. This is nonsense. How can you be so clear? Crystal clear. And not that after the discussion with Prabhupada, please bring the discussion, edit that line. I made a mistake. Why? Prabhupada says it is because of this. Because I know Krishna, I know everything. It's like in mathematics. If you know the basics, you can derive anything. Because devotee knows the conclusion. And it's not that, it is to try to understand this thing. If suppose somebody gets mystic power, it is called very confidential. That person can fly in the air, he can go inside an atom. These are all siddhis. You consider some very unique person. What's so unique about it? All the Danavas had it and they have it also. There are many Danavas still fighting with Devata. They have all these siddhis. Correct? They have a rather very dangerous kind of siddhis. They can do so many things. Ravana had so many siddhis. Now today's situation is that if you get anyone a so-called siddhi, you become God also among the fools. Arey Baba, these people, Hiranyakashipu shook the whole universe. He doesn't become God, but they don't have this sense. What is God? Prabhupada said God doesn't produce a gold ring, He produces a gold mine. They don't know how great God is. Therefore, small gods, they run around behind them, seeking their favors. If you know how great God is, you'll not even go to Devi Devatas because you know how great God is. Correct? It's a Yastu Narayana Devam
Brahmarudradi devate samattena vishveta sapashani bhave dhruvam. It says that somebody compares Shiva and Brahma to Vishnu, to Krishna. He is a great offender. And he is driven out from all the religious ceremonies. And if you see his face, you should with the same clothes jump into the water and take bath. He is so inauspicious, that person. This kind of mentality is so abhorring. God is so great. Here we see Krishna and Narayana has appeared in front of the Devata. Devata went. The mess Devatas created, they went to Brahma. Brahma said, let us go. I don't know how to solve this. Let us go to an authority. They went to Shirodakshay Vishnu and they prayed and Lord appeared. When the Lord appeared, they could not even see him. All the Devatas together could not see. That's what happened in the beginning of the chapter. And then slowly Brahma, Shiva, more powerful, could see the bluish like a jewel, kind of beautiful form of the Lord within that effulgence. They prayed to the Lord, can we see you? So Krishna allowed them to see. Krishna was so effulgent, they say that forget about seeing Krishna, they could not even see themselves. The eyes become blinded. Too much light it put on you, you become practically blind. And imagine Krishna is source of billions of universes and all the billions of luminaries, everything is coming out of Krishna. So Krishna is the source of all the power. And all Devatas is folded hand and offering. That is the position of Vishnu. So if you understand, so very confidential thing is what? Considered very, very confidential? Some power. सबसे ज़्यादा सीक्रेट चीज़ क्या कुछ आपका शक्ति हो, कुछ ऐसा कर दो, कुछ ऐसा, है ना? किसी को मोहित कर दो, कुछ प्रकट कर दो, बड़ा सीक्रेट मालूम है. But Prabhupada says is nothing. The real secret is pleasure of offering service to Krishna. What is real secret? Pleasure of offering service to Krishna. This confidential secret is manifest in the heart of a devotee. That's all we want. We should not seek any facility. What we seek is that we do devotion service, what we are doing, we seek some pleasure. True, at a highest platform, we don't even seek that. But because highest platform, they just want to be engaged in Krishna service. They're not seeking even pleasure or devotion service. But in our platform, we are dragged to sinful activities. So that's our only recourse. Daily we are chanting to Anartha Nivritti is our process. And then it leads to Ruchi. And then you get the taste of pleasure or devotion service. This is great relief to the heart which is burning. That's what the Devatas say. Just like animals are thirsty. And when they get water, they feel so relieved. Similarly, when we sing, we get so relieved, so happy we feel, so satisfied we feel. So this is the most confidential. सबसे बड़ा सक्सेस ये नहीं है कोई एक शक्ति प्राप्त कर दिया है. सबसे बड़ा सक्सेस है हरे कृष्ण महामंत्र के जाप में सुख अनुभव कर दिया, वो सक्सेस है. लेकिन उसके लिए जो आपका जाप है उसमें कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते रहिए. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. पहले सुख तो नहीं, एटलीस्ट मन तो धुलेगा आपका. आपको लगेगा कि दुनिया में एक ही प्रॉब्लम, मेरा काम क्रोध, और कोई प्रॉब्लम नहीं है. और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ध्यान से जप करो, आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा. और जप करो, धो डालो, हाँ, मुक्त हो जाओ इससे. बिकॉज इससे मुक्त हो जाओगे तब आपको आध्यात्मिक सुख का अनुभव होगा. अब वो सबसे कॉन्फिडेंशियल चीज़ है दुनिया में, सबसे सीक्रेट चीज़ है जो सबको नहीं मिलती. ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादि पाए भक्ति लता बीज. प्रभुपाद जी बोलते हैं जनरली ये पॉसिबल नहीं है एक जन्म में. हाँ, बिकॉज अहो बतो से पचो भी गरियान या जीवाग्र वर्तते नाम तुभ्य. भगवान का नाम ही मुंह में रखना आसान नहीं है. बहुत जन्मों से हो सकता है तपस चल रहा था, अभी कर पा रहा है वो नाम. भगवान का नाम मुंह में रखना आसान है. बहुत लोग बोले जब नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, मुँह ही नहीं खोल पाते. अभी बहुत तप करना है. Just once when devotee asked Prabhupada, आप मेरे यूनिवर्सिटी में 2 साल पहले आए थे, मेरे को मालूम था प्रोग्राम है लेकिन मैं नहीं आया. इस साल में आया मैं, ही बिकेम फुल टाइम मेंबर ऑफ द मूवमेंट. और वाई 2 साल पहले मेरे को नहीं पता चला, वाई डिडंट आई कम. प्रभुपाद जी बोले आप उसमें रेडी नहीं थे, तो इसलिए भगवान ने प्रेरणा नहीं दी. अभी आपको थोड़ा थप करेक्ट. जानवर में क्यों जाते हैं? रेडी होना. वहाँ तरह तरह का इंद्रिय भोग मिलता है, और इंद्रिय भोग को स्वीकार करके आदमी थक जाता है, फिर मनुष्य जीवन आता है. अब फिर से इंद्रिय भोग करना है तो जा जानवर के जीवन. मनुष्य का जीवन है भगवत धाम जाने के लिए, इंद्रिय भोग करने के लिए नहीं. तो देवता लोग बड़े फॉर्चुनेट हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर सीइंग एंड दे आर सेइंग इफ यू नो एवरीथिंग.
एंड एक्चुअली भगवद गीता में भी लिखा है कृष्ण जी सब कुछ भी जानते हैं, इस तरह भी देख सकते हैं, कृष्ण जी सब कुछ जानते हैं। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, कृष्ण इज सिचुएटेड इन एवरीबॉडीज हार्ट। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके दिल में बैठे हुए, ठीक है। और सबसे कॉन्फिडेंशियल चीज आपको क्या है? भगवान की सेवा का सुख, भगवान के नाम में सुख आनंद, वो भगवान देना चाहते हैं और सबके दिल में बैठे हुए और सब कुछ है, उनको सब कुछ मालूम है। इसलिए देवता अपनी ये प्रार्थना करने के बाद बोलते हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है हमारी प्रॉब्लम क्या है। भगवान के पास जाके कुछ प्रॉब्लम है, बोलने की जरूरत नहीं, उनको मालूम है, उनको मालूम है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपकी सब चीज़ मालूम है, ठीक है। सो इस तरह आपको कभी नहीं सोचना चाहिए भगवान को मालूम नहीं है, सब मालूम है। इसलिए भक्त ये प्रार्थना भी करता है भगवान को, गलती से मैं कुछ उल्टी इच्छा मेरे दिल में आ जाए, आप पूर्ण नहीं करना, बिकॉज आपको मालूम हो जाएगी, प्लीज़ पूर्ण नहीं करना, बिकॉज मैं पाप कर्म की इच्छा करता रहता हूँ। मैं डिफाइन कर रहा था, जनरली हम सात्विक आदमी अपने लिए अच्छा सोचता है, दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, अच्छा ही सोचता है सात्विक। रासिक आदमी बुरा सोचना शुरू कर देता है लेकिन करता नहीं बुरा, लोगों से ईर्ष्या करना शुरू कर देता है, मान पूजा प्रतिष्ठा की इच्छा करता है, धन दौलत चाहिए उसको, पावर चाहिए, ये रासिक आदमी, लेकिन एक्सटर्नली वो शुद्ध है। और तामसिक आदमी का मन भी गलीट है और शरीर भी गलीट है, पाप कर्म सोचता है, पाप कर्म करता है, दूसरों को दर्द देता है, अपने को दर्द देता है, अपने को दूसरों को दर्द देने की सोचता भी, ये करता भी, ये तामसिक आदमी, ठीक है। तो अभी हम तामसिक हैं और उसके ऊपर कृष्ण का भक्त है। कृष्ण का भक्त के क्या लक्षण हम डिस्कस किए थे कल। तामसिक आदमी दूसरों को दर्द देने की सोचता है, रासिक आदमी और करता भी है, रासिक आदमी सोचता है लेकिन करता नहीं, सात्विक आदमी हमेशा दूसरों का अच्छा सोचता है, इसलिए मोड ऑफ गुडनेस। और जो भक्त है वो भगवान के विरह में बैठा हुआ है, उसका प्लेटफॉर्म अलग है। ही इज फीलिंग इंटेंस सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा, उसका दिल कुछ अलग ही है, जो भौतिक लोग समझ भी नहीं सकते, कभी नहीं समझ सकते, उनका कैपेसिटी के बाहर है। तो बहुत, तो ये अलौकिक स्थिति जब हम हमेशा भगवान के बारे में सोच रहे हैं, कैसे आ सकती है? महामंत्र के जाप से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, अलौकिक स्थिति है। तो बहुत लीला में भगवान ने दिखाया, एक्चुअली उनको सब कुछ मालूम है। अभी आप देखिए लीला, तो दुर्योधन अपनी माँ को मिलने जाता है गांधारी को, नंगा होके, गांधारी बोलते बेटा आ जा, क्योंकि पहले आपको तपस्या तो आपके पास पुण्य है, पुण्य तो आप किसी को दे सकते हो, ये करेंसी है एक्चुअली। जैसे जो पुण्य आत्मा होती है उसको जाके लोग प्रॉब्लम बताते हैं, यार मेरा ये प्रॉब्लम हो गया, एक्चुअली उसका रीज़न है बिकॉज वो जस्ट आपके लिए अच्छा सोच देना, अपने पॉकेट से करेंसी थोड़ा दे रहा, अपना पुण्य दे रहा। सिमिलरली जो महापाप करता है उसके यहाँ आदमी खाना भी नहीं खाना चाहिए, आपको पाप मिल जाता है उसके दक्षिणा भी लोग नहीं लेते, बिकॉज दक्षिणा लेना मतलब कुछ अपना उसका पाप भी लेना। इसलिए कुछ से टेम्पल लोग बहुत स्ट्रिक्ट है, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं ये हैं, उनसे तो दक्षिणा ही नहीं लेते, तो इतना पाप है, वो पाप वो हम नहीं पचा पाएंगे। तो कुछ लोग बोलते नहीं हम तो भगवान के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा केयरफुल रहना, वो पाप बहुत भयंकर आ रहा है आपके पास, केयरफुल रहना, आपको वो दबा देगा वो पाप। इसलिए पहले लोग नहीं लेते थे, पापी से कभी दक्षिणा नहीं लेते। जैसे घर जाते थे ना बच्चे दक्षिणा लेने, पापी से नहीं लेते, देखो उससे आप दक्षिणा लोगे ऑब्लाइज हो जाएगा, ऑब्लाइज मतलब कुछ पाप आपका चला जाएगा। इसलिए बोलते हैं जब खाना भी बाहर हम खाते हैं पैसा दे के लेना चाहिए, मुफ्त नहीं लेना चाहिए। द्रव्य मूल्य अगर पैसा दे दिया ना वो आपको पाप नहीं आएगा उसका, ये भी इंटरेस्टिंग है। अगर सुना फ्री नहीं लेने का, कुछ मूल्य दे दो तो उसका वो आप उसके ओब्लाइज नहीं हुए, ओब्लाइज होना मतलब पाप लेने का उसका, ये आप पाप करोगे नहीं। तो सिमिलरली गांधारी ने बहुत तप किया, बहुत तप किया। द डिवोटी फील्स सेपरेशन फ्रॉम द लॉर्ड, हिज कॉन्शियसनेस इज वेरी वेरी प्योर। सो गांधारी के पास तप था, गांधारी ने तप किया है, so she can give something, उसका पुण्य है। So what happened now? Krishna comes to know. She told दुर्योधन आजा बेटा, नंगा हो क्या, ना कुछ नहीं पहनने का, मैं तेरे शरीर को देखूंगी और अपना सारा जो जीवन का पुण्य तेरे को दे रही हूँ। पुण्य आत्मा थी और ऐसा पुण्य से विश करूंगी तेरे लिए कि तेरा शरीर लोहे का बन जाएगा, तो तेरे को भीम कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। कृष्ण जी वहाँ पहुँच गए, ए बेशरम नंगा जा रहा है माँ के पास, क्या कर रहा है, नंगा खड़ा था, यानी माँ ने बोला है नंगा जा, अरे बेशरम कुछ तो पहन ले, इधर तो कुछ अपने कवर योर दिस एरिया, तो उसको कुछ तो शर्म कर।
तो उसने भी लगा यार ठीक ही बोल रहा है तो उसने भी कुछ एक यहाँ पे एक टॉवल पहन लिया, लंगोट पहन ली, घुस गया अंदर। तो माँ ने आँख खोली, माँ ने आँख नहीं खोली थी बहुत सालों से, जब से शादी हुई थी। माँ ने आँख खोली और सारा पुण्य अपना आशीर्वाद के साथ दे दिया कि उसका जो पूरा शरीर लोहे का बन जाए, लेकिन वहाँ लंगोट पहना था। तो बोला ये किसने बोला तेरे को? कृष्णा। समझ आ गया। तो देखिए प्रूव हो गया कृष्ण को सब कुछ मालूम है क्या हो रहा है। दूसरा आप लीला लीजिए, जब भीष्म को अर्जुन दुर्योधन उकसा रहे थे, भाई क्या है तुम युद्ध नहीं कर रहे ढंग से, दुर्योधन बोल रहा था भीष्म को, तुम बाउस नहीं करते पांडवों से, नहीं तो अभी तक तो मर जाते। बोलता है अच्छा ठीक है। सो ही सेज व्हाट वी विल डू, हाँ अभी तक मर जाते, सो व्हाट वी विल डू। सो ही सेज, भीष्म सेज ओके, कल ये 5 मैंने बाण बनाए, अभी बैठ के बनाते हैं। 5 पांडव की मृत्यु निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। अगर रोक सकता है कृष्ण रोक सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं रोक सकता मेरे को कल। वो एक्चुअली महान शक्तिशाली थे, परशुराम के शिष्य थे। भीष्म बहुत महान योद्धा थे, उनसे लड़ने का योग्य कोई नहीं था पूरे युद्ध में। उम्र थी लेकिन बहुत शक्तिशाली थे। तो अगले तो कृष्ण को पता चल गया, क्योंकि क्यों सर्वव्यापी है। तो कृष्ण जी ने क्या किया, ए अर्जुन क्या तेरे को याद है एक बारी श्री राधा गोविंद की, एक बारी दुर्योधन ने तुमको एक आशीर्वाद दिया था। ये जब गंधर्व लोगों ने कौरवों को पकड़ा था तो अर्जुन ने उनको बचाया था। ये उनके वनवास के टाइम दुर्योधन उनको थोड़ा ऐश्वर्य दिखाने आया था, देखो तुम तो गरीब हो, मैं कितने मज़े में हूँ। तो लेकिन उधर आया तो गंधर्वों को कुछ लगा है बेशरम दुर्योधन, तो जानते थे पांडव कितने योग्य हैं और ऐसे उनको बेइज्जत कर रहा है, तो उसको सबको उठा के पकड़ के ले गए। और ये कर्ण तक कोई युद्ध नहीं कर पाए, सब फंस गए थे। उस समय अर्जुन ने सबको बचाया, ठीक है। अर्जुन के सामने सब झुक गया, बिकॉज अर्जुन से युद्ध नहीं कर सकता था कोई। तो उस समय बचने के बाद दुर्योधन ने एक आशीर्वाद दिया था अर्जुन को, कुछ वर मांग ले। तो अर्जुन ने बोला नहीं, आगे देखेंगे कभी। तो कृष्ण ने बोला अर्जुन को याद है तेरे को दुर्योधन ने एक बार वर दिया था कि तू कुछ मांग ले। जैसे हमको याद है भगवान राम की लीला में दशरथ ने भी प्रॉमिस किया था वर। पहले इतने दुर्योधन तक अपने शब्द को पकड़ा हुआ है, बहुत तरह से पापी भी था लेकिन कुछ गुण है उसमें। तो उसके बाद क्या हुआ कि अर्जुन दुर्योधन के पास गए और दुर्योधन ने भीष्म से 5 बाण ले लिए थे। उसको टेंशन था कि ये बाण कल कहीं गुम ना जाए, कि जैसे उसने रख लिए थे अपने पास, सुबह युद्ध के पहले दे दूंगा, 5 पांडव का नाश कर देना, मैं हमेशा के लिए राजा बन जाऊंगा। ये उसका प्लान था, कंस का जैसा, सब बच्चे अच्छे सब मार दो, मैं राजा बना रहूँगा, ठीक है। तो रात को उसने बाण अपने रूम में रखे हुए थे, सुबह देगा भीष्म को, और अर्जुन पहुंच गया खट रात को। तो दुर्योधन ने खोला दरवाजा, अर्जुन। तो अर्जुन क्या चाहिए, क्योंकि ऐसा था अतिथि देवो भव, तुमको चाहिए राज्य दे देता हूँ, ऐसा मतलब। बोले नहीं, ये सब तो युद्ध में डिसाइड करेंगे, लेकिन तुम्हें याद हो तुमने मेरे को वर दिया था। हाँ वर दिया था, बोल ना क्या चाहिए तेरे को। वो 5 बाण दे दो। शॉर्ट कैसे पता चला, क्योंकि कृष्ण को सब मालूम है, सब मालूम है, ठीक है। तो ये एक्चुअली अगर आप कृष्ण को जानते हैं तो सब कुछ जानते हैं। और इससे एक और इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है, कृष्ण से आप कुछ भी छुपा नहीं सकते। अभी क्या है कि हम बाहर तो एक्सटर्नल शो करते हैं, लेकिन अंदर हम रजोगुण तमोगुण में फंसे हुए हैं। हमारा मन एम्बैरेस करता है हमको। एम्बैरेस मतलब शर्म आती है, कैसे कर विचार आ रहे हैं, क्या विचार आ रहे हैं, किसी को एक्सप्लॉइट करो, किसी का फ़ायदा उठाओ, किसी को मारो, किसी को दर्द दो, ऐसे विचार आते रहते हैं मन में। जबकि बाहर से हम सब लोग सोचते हैं मैं अच्छा आदमी हूँ, हम अच्छा आदमी नहीं है एक्चुअली। जब ये समझ आता है आदमी हम्बल बनता है। ऑनेस्टली ऐसा नहीं है कि ह्यूमिलिटी एक आर्टिफिशियल है, जेन्युइन है। विद्या विनय है, विद्या आती तो आदमी ऑटोमेटिकली विनय बन जाता है, ठीक है, तो सच है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कृष्णा नो, सब कुछ मालूम है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। भगवद गीता में कृष्ण जी बोलते हैं सब कुछ मालूम है मेरे को। आपको खाली ये मालूम आपके मन में क्या हो रहा है, लेकिन आपको ये मालूम नहीं दूसरा आदमी क्या सोच रहा है। कोई है, कृष्ण है, उनको सब मालूम है। पूरी दुनिया में एक एक चींटी, एक एक कीड़ा, सब कुछ क्या सोच रहा है सब मालूम है एक टाइम में। हाँ,
तो ये भगवान ही विष्णु कर सकते हैं, इसलिए मैनेजमेंट का काम ब्रह्मा शिव को नहीं दिया जाता, वो नहीं कर सकते। बनाना बिल्डिंग और बिल्डिंग तोड़ना कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन उसमें लोगों को मैनेज करना और परफेक्ट मैनेज करना। आपके सामने हर समय मृता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा, और आपके सोचने में भी भगवान मदद करते हैं, आपको याद दिलाते हैं। स्मृति आप भूल जाते हैं, आपको तरह तरह की भोग की इच्छा है, कितने जन्म बाद वो इच्छा के लिए आपका वातावरण बनता है, भगवान याद करते, कर तू ये इच्छा कर रहा था ना, कर, तो भगवान याद दिलाते हैं। स्मृति ज्ञानम, कभी कभी आपको कुछ ज्ञान की इच्छा होती है, साइंटिस्ट लोग बहुत कोशिश करते रहे ये चीज़ कैसे बनाए, भगवान देते हैं ज्ञान, मन में आता है ज्ञान, फ्रेश नॉलेज। स्मृति मतलब जो आपको चीज़ मालूम थी, ज्ञानम मतलब फ्रेश नॉलेज, अपोहनम फॉरगेटफुलनेस, कभी कभी भगवान आपको सब कुछ भुला देते हैं। ठीक है, तो साइन ऑफ इंटेलिजेंस, एक्चुअली इंटेलिजेंट आदमी सब कुछ याद रखता है। ठीक है, सब लोगों के नाम याद रखता है, लोगों के चेहरे याद रखता है, वो बुद्धिमान व्यक्ति है। सो हेयर इफ ही कैन रिमेंबर कृष्णा, वी रिमेंबर एवरीथिंग। ठीक है, कृष्णा इंक्लूड्स एवरीथिंग। यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेव विज्ञानम भवन्ति। तो अगर हम कृष्ण को समझ गए तो आपको, इसलिए बोलते हैं अगर आप भागवत का फिलॉसफी सिद्धांत को समझ गए तो दुनिया का कोई ऐसा फिलॉसफी नहीं है जो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। आप टक्कर ले सकते हो किसी भी से, आप खुश हो जाते हो, इतना कॉन्फिडेंशियल है। तर्क प्रतिष्ठा श्रुतिया विभिन्ना, ये जो भागवत का जो ज्ञान है, गीते का ज्ञान है, जो आनंद, भगवान की सेवा का जो सुख है, ये तर्क से नहीं हो सकता। कोई लड़ने आएगा हम उसको नहीं बता सकते। श्रुतिया विभिन्ना, बड़े बड़े शास्त्र पकड़ते रहो, पढ़ते रहो। बहुत लोग तो संस्कृत चाहिए मेरे को, सीख के पढ़ते रहो, नहीं समझ आएगा। हाँ, और मुनि के पास गए, मतिर्न भिन्नम, हर मुनि का ही मत अलग अलग होता है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम, जो रियल धर्म का तत्व है वो छुपा हुआ है, भक्त के दिल में छुपा है, वहाँ से आपको मिलेगा। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा